Hello everyone, myself Manjula. Today we will start Contemporary South Asia chapter from class 12 Political Science. See, as you all know that CBSE done, a lot of changes in class 12 Political Science. If we look at this particular chapter, the content is almost same. Only a minor change has been done. That was SARC organization has been shifted from this chapter to the chapter number 3, new centers of power. Okay, so as per the old syllabus, this chapter comes under chapter number 5, that is contemporary South Asia. As per new syllabus, this put under the title South Asia and the contemporary world. Okay, so let's start, and in this particular first part of this chapter we will discuss about what is South Asia. Then we will have a brief look at the political system that prevail in the South Asian countries. Then we will analyze in detail about the military and democracy in Pakistan. Okay, let's start. First, we have to understand what is South Asia. See, in South Asia, we have all these countries. In South Asia location, you can see here. It covers Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. Okay, so all these countries come under South Asia, but we will discuss about only these 7 countries. We will not discuss about Afghanistan. See, you also heard about calling this place as an Indian subcontinent. Okay, so if we look at the its geographically, if we analyze the location carefully, we can see here this western side. Here we have Arabian Sea, and this side we have this eastern side we have Bay of Bengal. Then in south we have over here Indian Ocean. Okay, and in northern side we have Himalayas, right? So this place, because of its unique geographical feature and its unique political feature, makes it a distinct land from the Asian continent, which we call this place as a Indian subcontinent. Okay, so let's have the discussion. Now first we will look at into the political system in all these countries in brief. Then we will discuss about the Pakistan situation. Now first discuss about India and Sri Lanka. See, India got independence in 1947, as you all know, and Sri Lanka got independence in 1948 from Britain. Okay, so these are the two countries in South Asia which remained democratic even till now. जब वो इंडिपेंडेंट हुए थे तब से लेकर अब तक वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबल एस्टैब्लिश्ड है, राइट. वेयर एज यू कैन सी हियर Pakistan and Bangladesh, as you all know that Bangladesh created in 1971. Before that it was considered as East Pakistan, and this one West Pakistan. Okay, so Bangladesh and Pakistan and Bangladesh का history को analyze करोगे proper तरीके से, both these countries had both the types, that is civilian and military, राइट. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इंस्टेबिलिटी था वहाँ पर. सब कभी सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ. सो वी आर जस्ट हैविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ओके, सो डिटेल में जब डिस्कस करेंगे यू विल कम टू नो व्हेन वाज द सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश एंड व्हेन मिलिट्री गवर्नमेंट टुक प्लेस एंड व्हाई such kind of changes took place. All those things, factors, we will analyze, right. Now from post Cold War, that is from 1990s onwards, बांग्लादेश में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, right. And if we look at the Nepal remained as constitutional monarchy till 2006, and in 2008 monarchy system was abolished, और 2008 के बाद वहाँ पर एक proper democratically formed government established हुआ. Okay, and if we look at the Bhutan remained constitutional monarchy, it became constitutional monarchy in 2008. ओके, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स व्हाट, बेसिकली जो हेड ऑफ द स्टेट होगा दैट विल बी मोनार्क, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर एक प्रॉपर एक दूसरा पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट होगा जहाँ पर पब्लिक के थ्रू वहाँ के जो मेंबर्स हैं दे विल बी इलेक्टेड बाय द पब्लिक. ओके, सो लाइक यू कैन सी हियर भूटान जो है 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुआ, एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन भूटान. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द Maldives, let me show you the big map of this one. Here you can see the big map of Maldives. Here you can see basically Maldives is it is a collection of islands. It is made up of collection of small islands. You can see here various small islands together. It constitute into
a nation that is Maldives. Okay, so it is also known as an archipelago island. Archipelago means basically small islands से जो देश बना हुआ है उसको हम archipelago कहेंगे. जैसे Maldives है, Japan है. Okay, and at present Maldives के जो president है that is Ibrahim Mohammed Soli. Okay, and one more thing, GK point of view से बहुत important, you can notice over here that equator passes through Maldives. This is also part of Maldives. Okay, so equator passes through Maldives. वर्ल्ड में 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके थ्रू इक्वेटर पास करते हैं, तो मालदीव्स इज वन ऑफ दैट दोज कंट्री थ्रू विच इक्वेटर passes through. Now let's have a brief history about Maldives. Maldives was ruled by the Sultanate till 1968, and it transformed into a republic, and it adopted the presidential form of government. Okay, and June 2005 में जब Maldives के parliament है, they decided that they will introduce a multi-party system, and they done that, and this party, that is Maldivian Democratic Party, this is actually dominant political party in today's time, and 2018 का जो election है that was owned by this Maldivian Democratic Party, और इसी के जो पार्टी के मेंबर हैं जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है that is President Ibrahim Mohammed Soli. Okay, so this was all about a brief introduction about the political system that is prevailing in today's time in these locations. One more thing, notice here, at present if we look at the Prime Minister of Pakistan, that is Imran Khan, and in Bangladesh we have a Prime Minister. In Bangladesh we have a Prime Minister at present, Sheikh Hasina. Okay, now this is about the brief introduction about the political system that prevailing in today's time. Now see, one more thing, keep in mind that in all these countries it has been observed through various surveys that people having this different experience of like in Pakistan, Bangladesh, military rule and civilian government. Okay, किसी जगह पे constitutional monarchy है, right? So लोगों का ये aspiration है कि that they prefer, they aspire for the democratic form of government, right? This is something very common in all the countries in this particular location. Now let's have a detailed discussion about the military and democracy in Pakistan. Now let's discuss in detail about the military and democracy in Pakistan. Now see, after the establishment of first constitution in Pakistan, that is in 1956, General Ayub Khan took over the power. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना था. ईयर आई मेंशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने होंगे डेफिनेटली. दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन वाज सस्पेंडेड बाय द जनरल आयूब खान. उसके बाद 1962 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड दैट वाज आल्सो लेटर ऑन सस्पेंडेड. देन फाइनली आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971 एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से पाकिस्तान में बना, दैट वाज इन 1973. तो आज के टाइम पे जब पाकिस्तान का पूरा जो गवर्निंग सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज़ एक्चुअली गवर्नड एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. ओके, keep this in mind. Now keep one thing in mind, here you can see here I try to show the military rule through yellow color. So this yellow color represent the military rule and this blue color represent the democratically formed government. Okay, now so after the formation of this creation of this first constitution in Pakistan in 1956, Iskandar Ali Mirza, he became the president of Pakistan, and then first military takeover हुआ था in 1958 to 1971. This is the first military coup. Okay, तो what do you call that कि यहाँ पर तक्का पलट हो गया फ्रॉम सिविलियन गवर्नमेंट टू यहाँ पर अभी एक मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ. ओके, सो इस पर्टिकुलर फर्स्ट मिलिट्री जो coup हुआ था इसमें 2 लीडर्स थे, राइट. फर्स्ट वन वॉज जनरल आयूब खान, इसने रूल किया था फ्रॉम 1958 टू 69. उसके बाद इसने पावर जो है वो याया खान, जनरल आगा मोहम्मद याया खान को ट्रांसफ़र कर दिया. सो शॉर्टली वी कॉल देम, इन शॉर्ट वी कॉल हिम Yahya Khan. Okay, so let's see what happened under their ruling time period. Now first Ayub Khan. Now see, during General Ayub Khan, that is from 1958 to 69, इसके particular time period में क्या problem था? यह था कि यहाँ पर जो food prices जो थे वो काफ़ी ज़्यादा increase हो गए थे, elections में fraud के भी cases लगे थे, then
segregation policies exist कर रहे थे for the West Pakistan people and for the East Pakistan. Keep one thing in mind कि West Pakistan में जो लोग हैं वो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा डोमिनेटेड है, एंड देन इन ईस्ट पाकिस्तान दैट इज़ प्रेजेंट बांग्लादेश, वहाँ पर बंगाली स्पीकिंग डोमिनेटेड. सो कल्चरली डिफरेंट है, लैंग्वेज वाइज भी डिफरेंट है. ओके, सो और वन मोर थिंग ना, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, Muhammad Ali Jinnah, he declared national language as Urdu को national language declare किया था, right? So these things were not liked by the people in East Pakistan. So वहाँ पर popular uprising हुआ, वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड सीइंग ऑल दिस पॉपुलर अपराइजिंग प्रोटेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान, आयूब खान का जो एक पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ. ही इज़ नॉट एबल टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, एंड ही साइन फ्रॉम द फ्रॉम द पोजिशन फ्रॉम द एज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसने रिज़ाइन कर दिया था. उसके बाद उसने दूसरे जनरल लीडर को इन्वाइट किया, दैट वाज आगा मोहम्मद याह्या खान, जिनको हम शॉर्ट में याह्या खान कहते हैं. ओके, सो याह्या खान केम इनटू पावर, तो उसने रूल किया फ्रॉम 69 to 71, एंड यू कैन सी हियर ड्यूरिंग याह्या खान. सी याह्या खान को ये माना जाता है कि वॉज लीस्ट सक्सेसफुल लीडर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री. ओके, बिकॉज इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पाकिस्तान का जो यूनिटी है वो ख़त्म हो गया, एक नया देश क्रिएट हो गया बांग्लादेश. ओके, सो पाकिस्तान डिवाइड हो गया, right? So during Yahya Khan, you can see here, this is civil, kindly corrected. So इस particular time period में ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ. ओके, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1971 में इंडिया में 5th लोकसभा इलेक्शन चल रहा था. ओके, एंड यू कैन नोटिस वन थिंग ओवर हियर, 1970 तक पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी नहीं हुआ. ओके, जिस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन होता है इंडिया में एवरी 5 ईयर, तो 1971 में इंडिया में 5th लोकसभा इलेक्शन चल रहा था. ओके, फॉर द पार्लियामेंट. और पाकिस्तान में 1970 तक वहाँ पर एक बार भी जनरल इलेक्शन नहीं हुआ. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन 1970 ड्यूरिंग दिस मिलिट्री रूलर जनरल याह्या खान. ओके, नाउ आज इस पर्टिकुलर इलेक्शन में क्या हुआ, इस इलेक्शन में ये हुआ कि दैट ईस्ट पाकिस्तान में जो लीडर है दैट वाज शेख मुजीब रहमान. ओके, सो इनको शेख मुजबूर रहमान भी कहते हैं, मुजीब रहमान भी कहते हैं. ओके, सो लेट्स टेक मुजीब रहमान. सो ड्यूरिंग दिस इलेक्शन, शेख मुजीब रहमान ही गॉट अ लॉट ऑफ सीट्स. ओके, टोटल 300 सीट्स हैं, तो मुजीब रहमान के काफ़ी जो कितने सीट्स रिक्वायर्ड है, ऑफकोर्स 151 रिक्वायर्ड है टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो शेख मुजीब रहमान में ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान. सो ज़्यादा जो ईस्ट पाकिस्तान के ऑलमोस्ट नियरली आई थिंक 2 सीट रह गए थे. ऑलमोस्ट एवरी सीट वॉज वोन बाय दी शेख मुजीब रहमान, एंड ही गॉट अ वेरी गुड मेजॉरिटी कि डेफिनेटली तो इनका गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए था फॉर द फुल पाकिस्तान. ओके, यू कैन सी, लेट मी शो इन द मैप, लेट मी ओवर एक्सप्लेन हियर. नाउ हियर यू कैन सी, सो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट, जस्ट कीप दिस वन एज द ईस्ट पाकिस्तान. यहाँ पर अब गवर्नमेंट किसका फॉर्म होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए, शेख मुजीब रहमान का गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए, एंड ही बिलोंग टू द पार्टी ऑफ अवामी लीग. ओके, सो ईस्ट पाकिस्तान में जो पार्टी डोमिनेंट पार्टी थी दैट वाज अवामी लीग, एंड इन वेस्ट पाकिस्तान दैट वाज मुस्लिम लीग. ठीक है, सो दिस अवामी लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीब रहमान, ये पार्टी जो था ये को ज़्यादा सीट्स मिल गए थे. बट जनरल याह्या खान जो था ही वॉज नॉट इन फेवर कि एक ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी के जो लीडर है उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने थे. ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, याह्या खान ने एज सच इनके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अप्रूवल नहीं दिया, एंड शेख मुजीब रहमान वॉज अरेस्टेड. ओके, एंड दैट क्रिएटेड अ सिविल वॉर. यहाँ पर लोगों को और गुस्सा आया. ओके, सो वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गया, एंड देन याह्या खान व्हाट ही डिड, ही ऑर्डर्ड फॉर द वायलेंस. वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा जो भी लोग डिमांड कर रहे थे कि दैट अब लोगों ने क्या डिमांड किया ईस्ट पाकिस्तान में, नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. वो सेपरेट अपना देश क्रिएट करना चाह रहे. ओके, बिकॉज हियर यू कैन सी दिस इज जस्टिफाइड कि एक पार्टी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी आई मीन रिक्वायर्ड नंबर से वो जीत रहा है, एंड द पार्टी इज़ नॉट अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट. दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स. सो दे स्टार्टेड फीलिंग दैट उनको इतना ज़्यादा वो राइट्स नहीं मिल रहे यहाँ पर, वो गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड दे स्टार्टेड सिविल वॉर इन पाकिस्तान
ऑफ कोर्स इन ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ पर डोमिनेंट था. एंड दिस याया खान ही ऑर्डर्ड वायलेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस मूवमेंट, दैट इज मास मूवमेंट जो यहाँ पर हो रहा था, और उसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश जीनोसाइड हुआ था. ओके इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज इन 1970 के इलेक्शन के बाद 71 के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पर पूरा आई मीन मार्च अप्रैल दिस 1971 का जो पूरा टाइम पीरियड है. ओके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बांग्लादेश में लोगों को मास स्केल उनको मारा गया था. दैट वाज known as Bangladesh genocide. Right, if you look at pictures of this Bangladesh genocide, it's very tough to look at all those pictures. बहुत ही horrible pictures है, आप देख भी नहीं पाओगे, but you can see it कितना ज़्यादा brutal तरीके से लोगों को मारा गया था. एंड आफ्टर दिस याया खान के टाइम पीरियड में क्या हुआ, ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर फाइनली 1971 दिसंबर में, अराउंड दिसंबर मंथ में यहाँ पर वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें इंडिया ने भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया था. सी व्हाई इंडिया एंटर्ड इनटू वॉर, दैट विल डिस्कस इन दी बांग्लादेश डेमोक्रेसी. ओके बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये सारा कवर हो जाएगा वॉर का. ओके सो 1971 दिसंबर में वॉर हुआ था, एंड दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑफ कोर्स याया खान जो था, he resigned from the post because of humiliation and everything. And उसके बाद एक democratically formed government established हुआ, that was under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto. Okay, so here you can see 1971 से 77 तक जुल्फिकर अली भुट्टो का गवर्नमेंट था. उसके बाद इनको टेक ओवर किया बाय दी अनदर मिलिट्री जनरल, एक और अब ये सेकेंड मिलिट्री coup है, राइट, बाय दी जियाउल हक. ओके जियाउल हक ने रूल किया था यहाँ पर 1977 से 88 तक. एंड अंडर हीज टाइम पीरियड एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया. दैट इज फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट एस्टैब्लिश हुआ, एंड दैट लेड टू 88 में जियाउल हक ने पावर को छोड़ दिया था. एंड देन आफ्टरवर्ड्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ फ्रॉम 1988. Banazir Bhutto basically daughter of Zulfikar Ali Bhutto. Okay, she came to power and she belonged to this Pakistan's People's Party and Nawaz Sharif Muslim League Party. Okay, so you can see here एक तरीके से एक opposition party, जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस पार्टी, राइट, तो सेम वे यहाँ पर दिस वन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड दिस वन यू कैन से दिस मुस्लिम लीग. ओके सो दो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, एक ऑपोजिशन पार्टीज़. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1988 के बाद 1999 तक जो टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बेनज़ीर भुट्टो का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. उसके बाद नवाब शरीफ, देन अगेन बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाब शरीफ, राइट. तो इस तरीके से पावर जो था वो इनके बीच में हैंडल, इनके हाथों में था, राइट. देन फाइनली इन 1999 थर्ड मिलिट्री coup स्टार्ट हुआ, दैट वाज अंडर द जनरल परवेज मुशर्रफ. ओके सो परवेज मुशर्रफ टुक ओवर द पावर एंड 1999 में टुक ओवर किया था. एंड इलेक्शन 2001 में भी हुआ था, और उस इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ जो था ये जीत किया था, केम टू पावर एंड रूल्ड अप टू 2008. अच्छा, वन थिंग कीप इन माइंड कि पर्टिकुलर ये जो मिलिट्री रूलर्स है, व्हाट दे यूज्ड टू डू, अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो रूल कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, वो इलेक्शंस भी करवाते हैं. जब इलेक्शन का टाइम होता है तो दे यूज टू मेक दैट थिंग पॉसिबल कि वो इलेक्शंस करवा दिए, इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर दे आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक इमेज, कि वो डेमोक्रेसी को यहाँ पर कर्टल नहीं कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं बाय कंडक्टिंग द इलेक्शन. सो सारे जो मिलिट्री रूलर्स थे, इनका ये एक हिस्ट्री रहा है. Okay, so this was all about the military history of Pakistan. I hope this one clear. Now, let's have a look at the factors responsible for Pakistan's failure in building a stable democracy. ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में 3 बार मिलिट्री को हुआ, एंड यू कैन नोटिस द ईयर 1999 से 2008 तक, राइट, एंड हियर 77 से 88 10 ईयर्स का टाइम पीरियड है, और यहाँ पर 58 से 71. इट शोज दैट कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम पीरियड दैट इज एक्चुअली पाकिस्तान स्पेंड अंडर द मिलिट्री रूल. नाउ व्हाई द पाकिस्तान नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी? श्रीलंका में बिल्ड हुआ, इंडिया में बिल्ड हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? लेट्स हैव अ रीजन फॉर दैट. ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें 4 मेन रीजंस हैं. दिस कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स क्वेश्चन. लेट्स हैव द डिस्कशन. Now, the first reason is that the social dominance of the military, clergy and land-owning aristocracy. Keep this in mind. The social dominance of military, clergy, land-owning and aristocracy has led to the frequent overthrow of elected government and establishment of military government.
गवर्नमेंट. ओके, नाउ सी सोसाइटी में जो डोमिनेंट ग्रुप्स है, डोमिनेंट कौन से ग्रुप्स है यहाँ पर? मिलिट्री, जो भी आर्मी के मेंबर्स है वो उनका डोमिनेंस ज़्यादा है. ओके, क्लर्जी दैट इज लीडर्स रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी दैट इज पॉपुलर जो रूलिंग क्लास है जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड के कंट्रोल है. ओके, इनका डोमिनेंस ज़्यादा है. एंड दे यूज टू, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर पावर इन द सोसाइटी, दे यूज टू फ्रीक्वेंटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको ओवरथ्रो करने में वो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं. एंड देन दे ट्राई टू एस्टैब्लिश मिलिट्री गवर्नमेंट ओवर हियर. यहाँ पर इनका पर्सनल इंटरेस्ट लाई कर रहा है, राइट. सो इनके अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए दे यूज टू प्रेफर दैट मिलिट्री रूल ओवर हियर. So this is one reason. Second one is that India's conflict with Pakistan's conflict with India. Okay, very interesting. मतलब ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे 1965 में वॉर हुआ, देन पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में वॉर हुआ था, देन कारगिल वॉर हुआ था. ओके, सो ये जो वॉर जो कन्फ्लिक्ट बार बार जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन मोर रीज़न for Pakistan's failure in creating the stable democratic government. Okay, now let's see ये कैसा reason है. Now here जो military groups जो है what they used to give, ये justification करते हैं कि that पाकिस्तान के security के लिए, in order to provide security to the Pakistan, आर्मी रूल अगर कभी भी पाकिस्तान का इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, आर्मी रूल शुड बी दैट शुड बी आर्मी रूल होना चाहिए, एंड पावर शुड बी देयर इन देयर हैंड्स, बिकॉज तभी वो पाकिस्तान को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. और यहाँ पर वाई दे यूज टू गिव सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दे बिलीव दैट जो पोलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, दे पोलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक के थ्रू जो भी गवर्नमेंट्स फॉर्म होते हैं, दे आर एक्चुअली दे सी देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अगर इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होगा तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी होंगे वहाँ पर दे विल सी देयर सेल्फ इंटरेस्ट कि उनके पॉलिटिकल पार्टी का पॉपुलैरिटी किस में होगा, कौन से डिसीजन लेने से होगा, वेदर इट कैन बी लिबरल तरीके से बातचीत करके सॉल्व करने से या फिर कन्फ्लिक्ट करके. ओके, तो दे जस्ट लुक एट इनटू देयर ओन इंटरेस्ट, राइट. वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे. एंड देन डेमोक्रेसी जो होगा, दे बिलीव, आर्मी पीपल बिलीव दैट डेमोक्रेसी जो एक फ्लॉड है, एक डिफेक्टिव मेथड है. ओके, सो दे फेवर कि पाकिस्तान को अगर सिक्योर करना है बाय विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट एंड फ्रॉम दिस chaotic डेमोक्रेसी, फ्रॉम दिस सेल्फ माइंडेड पार्टीज एंड ऑल, उसको ज़्यादा जो है दैट शुड बी डन बाय दी व्हेन द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ आर्मी. ओके, सो थ्रू दिस वे दे ऑल्सो जस्टिफाई. नाउ थर्ड रीज़न क्या है? दैट लैक ऑफ जेन्यून इंटरनेशनल सपोर्ट. इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला कि बहुत ही जेन्यून तरीके से कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक रूल को एस्टैब्लिश करे. ओके, सो दिस रिजल्ट इनटू मिलिट्री रूल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ यहाँ पर और वो डोमिनेंट ग्रुप की तरह एस्टैब्लिश हो गया. दिस इज थर्ड रीज़न. Fourth reason is that United States and the Western countries have encouraged military authoritarian rule in the past for their own interest. जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर वो इस पाकिस्तान में मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल जो है ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है इन दी पास्ट. इफ यू लुक एट दी कोल्ड वॉर टाइम पीरियड एंड ऑल, ये जो कंट्रीज़ जो है ये ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था कि यहाँ पर जो है मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल होना चाहिए, तभी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट होगा, राइट. And one more thing in continuation of this one is that कि fear of threat from global Islamic terrorism. Okay, see global level पे जो इस्लामिक टेररिस्ट जो बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न स्टेट्स है, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज है, दे यूज टू फियर फ्रॉम दैट ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म. और उनका ये भी मानना है कि दैट पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं. ओके, सो दे यूज टू फियर दैट कि अगर ये जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर वो किसी टेररिस्ट के ग्रुप हाथ में पहुंच जाए, ओके, तो देन इट कैन लीड टू थ्रेट फॉर देयर कंट्री, राइट. सो दे यूज टू बिलीव दैट कि इसे ये जो चीज़ है ये प्रोटेक्टेड तभी होगा, ये टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में तभी नहीं पहुंचेगा व्हेन वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल होगा, राइट. दे यूज टू सपोर्ट इन दैट वे ऑल्सो. ओके, एंड मिलिट्री रूल अगर पाकिस्तान में होते तो इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया दैट इज़ मिडिल ईस्ट एशिया, दैट प्लेस, ओके, दैट ईरान, अफगानिस्तान, दैट कुवैत रीजन एंड ऑल, ओके, एंड वेस्ट एशिया में वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं व्हेन मिलिट्री रूल इज़ देयर इन
Pakistan. So these are the 4 important reasons why Pakistan was not able to build a stable democracy in Pakistan. Okay, so I hope this one clear. In next part we will analyze about the Bangladesh. Thank you for watching.